All right, welcome back, viewers. This is our episode number 59. We are just one episode short of reaching our episode number 60. And our viewers, as you have been watching our episodes, it's a journey that we have covered now around, it will be around 1.7 months. And we are at episode number 59. Today, we are going to be, as festive season is going on, and we have a very special occasion coming for us, which is Deepavali. Many people are talking about sustainability and a lot of things. So we thought that this episode and it is going to be something related to it. And for that, firstly, I would like to introduce to our special guest, Mr. Abhishek Gupta. First of all, thank you, Abhishek, for making time in such a short notice to come on our episode. We just called Abhishek in the morning that you need to come. We have this idea and we need to execute it. And Abhishek has been kind enough to show up here. And before Abhishek, you say anything, I would like our audience to give a brief about you. So Abhishek has been an IIT graduate, right? So I'm a triple IT graduate. I've done PG diploma from Okay, IIM Ahmedabad. triple I. I am Ahmedabad. So Abhishek is from one of the well-known universities in India. And guys, I am going to tell you something which will blow your minds. That blowed my minds as well. Abhishek is into an industry which we all daily complain about that यार ये सड़क पे किसी ने कूड़ा फेंक दिया. Now you might be able to guess कि ये क्या है. तो अभिषेक उस इंडस्ट्री में that no one thinks is sexy, but that's where Abhishek is solving one of the biggest problems that we as humans are putting it forward for our future generations ki most of the people what they do is gan macha diya and they don't get. So we humans are very poor at managing the waste. That's what me and Abhishek discussed on our first call. And I am going to tell you that Abhishek runs a company. He's the co-founder of VVoice. Now, Abhishek, you being the co-founder of the company, you being the one who has the vision, who started this, I would like you to give our audience a bit in-depth insight of it because you are the one who will be able to do justice to it. Thank you, Anmol, for inviting me. और इवन दो आज जब आपका मैसेज आया कि क्या आज रिकॉर्ड कर सकते हैं, आई वॉज इक्वली एक्साइटेड बिकॉज आई सीन योर पॉडकास्ट एंड आई लव्ड इट एंड आई वांट कि ये एक इतना इम्पोर्टेंट इशू है, इसके बारे में लोगों तक पहुंचना चाहिए. Correct. एंड दिस इज द टाइम, लाइक हम लोग, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 ईयर से स्वच्छ भारत मिशन हो गया, लॉन्च हुए एंड अवेयरनेस बढ़ रही है विद टाइम. बट एक एक्सपोनेंशियल किक जो है ना, वो थोड़ा सा मिसिंग है. मतलब हम लोग अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन आई वांट कि एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी दिखनी चाहिए वेस्ट मैनेजमेंट में. तो वो शायद अभी थोड़ा सा हम लोग लैग कर रहे हैं, बट आई एम वेरी होपफुल कि वो एक्सपोनेंशियल किक भी जल्दी आएगी. तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मैं शेयर कर पाऊंगा आप सभी के साथ. एंड आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीबडी जो भी सुन रहा हो कि कुछ भी, अगर आप कुछ भी एनीथिंग इफ यू कैन डू, लाइक एटलीस्ट खुद वेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट कर पाए, या एटलीस्ट एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन पाए, या एनीथिंग, और यू कैन स्टार्ट योर करियर इन वेस्ट मैनेजमेंट, मे बी एज एंटरप्रेन्योर और अ पार्ट ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन, देन आई वुड बी वेरी हैप्पी एंड प्राउड. नहीं अभिषेक, ये आपने जो बात कही है, सो इट इज टोटली ट्रू. You are solving one of the biggest problems on the planet. So, why not? This is something that is motivating as well as for many entrepreneurs who think that tech is the only industry that you can work. No, 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 it is not like that. I keep on telling on our podcast that all the industries, entrepreneurs can solve 99% of the problems. And Abhishek is one of that example who is solving a problem that nobody thinks is sexy enough. But he is doing that, he is doing good, and whatever he is going to discuss in this episode today is going to be insightful for you all. Because this is an industry, even first time when I talked to him, I was like, okay, waste management, what is exactly doing? I found a reel, even I told Abhishek that I found this guy who did some waste management startup. I think he was from USA. He made millions. So is there something related to that? So Abhishek told, I don't know about him, but I know about my business. My business is this. And I was like, yeah, this is amazing. I think this idea we should be, our audience should be, our audience is exactly looking for this because our audience keeps on talking about, and will you bring something innovative? And recently also people also started bringing in sustainability, that you bring something sustainable. And your specific business, VVoice, it lands into both of these categories. So Abhishek, why not you begin with the journey, how you came to this industry? Like you and I have discussed on it, but tell our viewers, because every person has a story, every entrepreneur has a unique journey.
सो एंड स्पेशली आपकी इंडस्ट्री, तो वी वांट टू नो कि कहाँ से शुरुआत हुई। अनमोल, मतलब आपको मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा जर्नी के बारे में। मतलब इट्स अ टोटली एक्सीडेंटल केस। मतलब मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो आई वांटेड टू परस्यू एमएस एंड पीएचडी फ्रॉम गुड यूएस यूनिवर्सिटीज। तो मेरा हमेशा से था कि अपना एक रिसर्च प्रोफाइल बिल्ड करना है। एंड हमारे कॉलेज में 6 महीने का इंटर्नशिप होता था। तो आई ज्वाइंड आईआईटी दिल्ली टू डू माय इंटर्नशिप टू बूस्ट माय रिसर्च प्रोफाइल। और देयर आई गॉट दिस आइडिया। तो आई वाज वर्किंग एट आईआईटी दिल्ली ओके। एज आर ए आफ्टर माय ग्रेजुएशन। और मैं एक दिन ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रहा था। एंड आई फाउंड वन गाय पीइंग ऑन आईआईटी दिल्लीज वॉल। एंड इट वाज शॉकिंग फॉर मी। आई वाज ओके। लाइक कि यार ये क्या है ये, मतलब दिस इज दिल्ली। एंड आई क्लियरली रिमेंबर कि आसपास कोई टॉयलेट है। एंड द नेक्स्ट मोमेंट आई सॉ दैट टॉयलेट। और मेरे दिमाग में देन वो इंजीनियरिंग माइंडसेट चालू हो गया कि यार ये ऐसे क्यों कर रहा होगा, शायद टॉयलेट हाइजीन ना हो, शायद उसको लोकेशन ना मिली हो, और मे बी ही इज द वे ही इज एंड वी कांट हेल्प इट। बट राइट। मे बी अगर हाइजीन और लोकेशन उनको मिल जाए तो शायद ये प्रॉब्लम 60-70% लोग ऐसा ना करें, ऐसी एक्टिविटी ना करें। तो ऐसे मेरे दिमाग में करेक्ट। क्वेश्चन चल रहा था। दूसरा मुझे ये भी दिमाग में चल रहा था कि स्वच्छ भारत मिशन के बारे में थोड़ा थोड़ा मुझे आइडिया था। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपने व्हीकल सेंड करती हैं एज अ मैंडेट, हर एक घर पर, हर एक प्रॉपर्टी पर पहुंचना होता है और वेस्ट कलेक्ट करना होता है। एंड सैनिटेशन वर्कर्स आर द पीपल जो हर घर जा रहे होते हैं। एंड दे आर द पीपल जो, उन्हें दुनिया में कोई और जॉब नहीं मिला होता, दैट्स व्हाई दे आर इनटू सैनिटेशन वर्क और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। एंड दे आर द पीपल हु नेवर बीन टू स्कूल। तो आई वाज थिंकिंग, जब इस आदमी को जो एक अच्छा लग रहा था, मुझे मुझे लग रहा था ये एटलीस्ट ग्रेजुएट होगा, इसको शायद टॉयलेट ढूंढने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो जो सैनिटेशन वर्कर थे जिनसे हमारी एक्सपेक्टेशन होती है वो राइट। 1000 घर तक हर दिन पहुंच जाए, वो कैसे पहुंच पाएंगे? तो आई इमीडिएटली कॉल्ड माई कॉलेज फ्रेंड अभिनव। एंड हम दोनों बहुत ज्यादा ऑन्टरप्रनरल डिस्कशन करते रहते थे। तो मैंने आइडिया बताया कि अभिनव, दिस इज समथिंग, क्या हम ऐसा कुछ टेक डेवलप करें सैनिटेशन वर्कर्स के लिए, जहां पर वो लोग हर घर तक पहुंच पाए, हर घर से वेस्ट ले पाए, लोग टॉयलेट्स और डस्टबिन को लोकेट कर पाए, और हाइजीन फैक्टर को हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए, डस्टबिन का हाइजीन फैक्टर आइडेंटिफाई कर पाए। एंड अभिनव गॉट इक्वली एक्साइटेड। एंड हम लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया। और हमने डिफरेंट डिफरेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मेल लिखना स्टार्ट कर दिया कि हम इस तरह का एक हमने प्रोडक्ट बनाया है और हम चाहते हैं कि आपकी सिटी में हम इसको एग्जीक्यूट करें। एंड तब तक कुछ नहीं पता था गवर्नमेंट का कैसे काम करना है, कैसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। वी वर वेरी रॉ एंड वी वर थिंकिंग कि यार हम करेंगे, कोई नहीं कर रहा है वेस्ट मैनेजमेंट का, हम करेंगे। ये सोच के हमने काम स्टार्ट कर दिया था। एंड फॉर्चुनेटली फ्यू म्युनिसिपल कमिश्नर्स के ऑफिस से रिप्लाई आया, वी आर इंटरेस्टेड, वी हैव गिवन प्रेजेंटेशंस, कई जगहों से पायलट अपॉर्चुनिटी मिली। एंड थोड़ा सा स्लो चला, मतलब हम लोगों ने 2017 से काम करना स्टार्ट कर दिया था। एंड लेकिन कोई कंपनी वगैरह कुछ नहीं बनाया था, फॉर्म किया था। बट अक्टूबर नवंबर एग्जैक्टली सेम टाइम, आज से 6 साल पहले, फर्स्ट एक इंटरेस्ट आया था कि आप एक फुल फ्लेज पायलट करो हमारे साथ सीकर से। देन वी ओके। थॉट ऑफ कि यार कैसे कर सकते हैं, तब पता चला आपकी कंपनी होनी चाहिए, कंपनी कैसे बनती है, क्या करना है। तो हमने अक्टूबर में ही फाइल किया, दिसंबर में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। एंड 1 अप्रैल 2019 से हमने ऑपरेशन स्टार्ट किए सीकर में। तो ऐसे हमारी जर्नी किक स्टार्ट हुई। अमेजिंग। और उसी टाइम स्टार्टअप्स की जर्नी इंडिया में बूस्ट होनी शुरू हुई थी, आई गेस, राइट? बिकॉज उससे पहले तो बड़ा सूखा सूखा सा था स्टार्टअप का इकोसिस्टम इंडिया में। एंड आई आई थिंक 2016 2017 में ही स्टार्टअप्स इंडिया में बूम होने शुरू हुए थे। तो आपके लाइक एक जनरल बड़ा क्वेश्चन आता है जब भी हम यंग लोग कॉलेज के बाद एंटरप्रेन्योरशिप में घुसना चाहते हैं, तो सबसे पहला आता है फैमिली क्या करेगी फैमिली के साथ। तो आपके कुछ है फैमिली के साथ बातचीत इस बारे में, या कुछ क्लैशेस? मतलब अभी तो आई थिंक शार्क टैंक से और अवेयरनेस से इतना हो गया है कि आई थिंक बहुत इतना हिंड्रेंस नहीं रहता होगा फैमिली साइड से। बट करेक्ट। मेरे फैमिली वालों को लग रहा था यार ये तो शायद कुछ हो गया है, क्योंकि उस टाइम पे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम some IITs for MTech admissions and some PSUs for job, and government jobs are considered as best jobs, after राइट। graduation. करेक्ट। तो हाँ, मतलब उनको लग रहा था इसको कुछ हो गया है। बट
somehow they know कि ये सुनेगा नहीं. तो एक अच्छी चीज ये थी मेरी फैमिली के साथ कि बिकॉज मेरे दो सिस्टर्स हैं, बोथ गॉट मैरिड, एंड कोई ऐसा फाइनेंशियल बर्डन नहीं था. एंड सिमिलर इज विद अभिनव. अभिनव के सारे, ही वाज द यंगेस्ट इन द फैमिली, तो अगेन बाकी सब लोग सेटल्ड थे, तो बड़े भाई बहन थे थोड़ा सपोर्ट करने के लिए, तो फाइनेंशियल कोई बर्डन नहीं था. तो मतलब समहाउ उन्होंने रोका भी नहीं. बट ऑल्दो उनको ऐसा लगा कि चलो थोड़ा कर रहा है एक्सपेरिमेंट, मस्ती मजाक कर रहा है, कुछ टाइम में फेल होगा, फिर अपने आप ट्रैक पर आ जाएगा. तो ऐसे थोड़ा फैमिली वाले समझ गए. बट ओके. नाइदर माय फैमिली नॉर अभिनव फैमिली नॉर अस, वी बोथ नेवर बिलीव्ड कि हम लोग इस जर्नी में इतना आगे जा सकते हैं. वी नेवर थॉट अबाउट, एंड इट वाज वेरी वाह. रिवॉर्डिंग जर्नी. नहीं, करेक्ट करेक्ट. और आपने कंटिन्यूस एफर्ट्स किया. आपने मुझे बताया था कि 2018 आपने जैसे बताया 17 में शुरू कर दिया, फिर रजिस्ट्रेशन हुआ. आई थिंक आपने फॉर्मल ऑपरेशंस 2019 अप्रैल में 18 अप्रैल में शुरू किए, राइट? अप्रैल तो 20, जैसे आपने कंपनी रजिस्टर कराई 19 में. हाँ, दिसंबर ओके. 2018 में हम सो लोग को जब, रजिस्ट्रेशन हुआ कंपनी का. एंड देन हाँ, क्योंकि ये सारी चीजें टेंडरिंग के थ्रू होती है, टेंडर अवार्ड हुआ, टेंडर हमने फिर एक थोड़ा टाइम चाहिए होता है प्रिपरेशन के लिए, तो 1 अप्रैल 2019 से हमने काम स्टार्ट किया. करेक्ट. ओके. सो चलो, ये तो आपने मुझे बढ़िया बात बताई, क्योंकि सब एंटरप्रेन्योर्स ये फेस करते हैं इंडिया में. कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में क्या रहा था आपका? क्योंकि आपका कम- स्टार्टअप बड़ा यूनिक है. क्या उस टाइम कुछ क्वेश्चंस उठे थे? स्टार्टअप इंडिया था उस टाइम. नहीं नहीं, स्टार्टअप इंडिया था. स्टार्टअप इंडिया साइट से तो रजिस्ट्रेशन वगैरह बहुत इजी हो गया था. यहाँ पे ओके. प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम आई थी फाइनेंशियल्स में. मतलब एंड एंड इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, आई विल टेल यू हाउ. मतलब एक तो क्या था कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था, और अभी अभी वेस्ट मैनेजमेंट को मतलब फंडिंग अभी बहुत अच्छा हो गया है. मतलब पीपल आर देयर जो फंड कर रहे हैं ईएसजी ग्रुप को. बट 2019 में ईएसजी ग्रुप वाज नॉट सेक्सी. सब लोग टेक स्टार्टअप में पैसा डाल रहे थे, मल्टीपल रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशन थे. दूसरा, उसमें भी आप अगर गवर्नमेंट के साथ हो तो एकदम ही ना. मतलब उनको लगता है गवर्नमेंट पता नहीं पैसा देता है नहीं देता, मतलब देर मतलब इन्वेस्टर्स के अपने कुछ क्वेश्चन होते हैं. तो वी टॉक टू मल्टीपल इन्वेस्टर्स, बट किसी ने भी इंटरेस्ट शो नहीं किया. एंड फिर हम लोगों ने फ्रेंड्स एंड फैमिली से कुछ पैसा लोन लिया कि हम ओके. लोग पैसा आपको क्या है रिटर्न कर देंगे. तो हमने रिटर्न भी किया. अब मैं बताता हूँ आपको ये ब्लेसिंग डिसगाइज कैसे बन गया. क्योंकि हम लोग का फंड नहीं थे, तो हमें सस्टेनेबल होने के लिए प्रॉफिटेबल होना बहुत जरूरी था. तो हम लोगों ने डे करेक्ट. वन से ये मैट्रिसेस हमेशा कैलकुलेट करी कि हमारे आज के खर्चे आज के रेवेन्यू से ज्यादा ना हो. और आई एम प्राउड टू से टिल डेट नॉट इवन अ सिंगल डे जो हमारा पर डे का खर्चा है वो पर डे के रेवेन्यू से ज्यादा नहीं गया. मतलब एवरी डे वी आर प्रॉफिटेबल. तो अगर शायद हम वाह, लोग दैट शुरू इज में अमेजिंग. एक स्टार्टअप माइंडसेट होता है ना कि यार पहले तो पैसा बर्न करो, कस्टमर बेस बढ़ाओ, एंड देन थ्रू स्केल आप क्या प्रॉफिट अर्न करो. तो आई थिंक 100 में से शायद 5 या 10 कंपनियां प्रॉफिटेबल हो पाती होंगी, बट 90 कंपनीज शट करेक्ट. डाउन ही होती है. बट वी नहीं, आप फ्रॉम, देखोगे स्टार्टअप इकोसिस्टम में 90% ऑफ स्टार्टअप्स दे नेवर रीच प्रॉफिटेबिलिटी. वो एबिटा और ये सब चीजों पे खेलते रह जाएंगे, कभी प्रॉफिट नहीं बताएंगे एक्चुअल हुआ नहीं हुआ. सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग. हमारे जो उसमें मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स हु आर वाचिंग, दे आर इधर बूटस्ट्रैप्ड या उन्होंने भी कुछ इस तरीके से फंडिंग ली हुई है. वेरी फ्यू आर की डायरेक्ट जाके फंडिंग लेके दे आर एक्चुअली. अब मैंने एक चीज और नोटिस की है, विच पॉडकास्ट पे अदर गेस्ट ने भी बोली, कि अब तो इन्वेस्टर्स भी दे हैव बिकम स्मार्ट. दे वांट कि आप पहले एक लेवल तक ले चुके हो कंपनी को, एंड देन यू आस्क देम फॉर मनी. पहले होता था कि स्टोरी से आपने बता दिया कि हाँ मैं ये कर दूंगा, मैं चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा तो हो जाएगा. बट अब तो इन्वेस्टर्स लुक फॉर नंबर्स, कि आप नंबर दिखाओ भैया, मैंने कंपनी को इतना स्केल किया, ये मेरा कॉन्सेप्ट है. देन ओनली दे आर गिविंग यू फंडिंग. सो वो तो, लाइक आपने जो बात कही कि मैं हर दिन प्रॉफिटेबल हूँ, दैट इज समथिंग वी ऑल शुड लर्न. मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. तो अच्छा, जैसे आपका जो डेली ऑपरेशन है, सो इसमें मेजरली द काइंड ऑफ पीपल, द काइंड ऑफ पीपल दैट आर वर्किंग फॉर यू मोस्ट आर डेली टाइप ऑफ अर्नर्स, राइट? राइट सो राइट. इसमें तो काफी हेडेक रहता होगा. हाँ, तो बेसिकली क्या है ना कि मतलब ऐसा नहीं है कि वीवो इज एक इकलौती कंपनी वेस्ट मैनेजमेंट में.
ट्रेडिशनली Okay. वेस्ट मैनेजमेंट का काम सालों से हो रहा है, डेकेड्स से हो रहा है, Okay. बट सेटिस्फैक्ट्री वर्क नहीं हो रहा। लाइक जैसे आपने, आपकी मेरी बात भी हो रही थी, देहरादून हो गया, माउंटेन्स हो गए, इनफैक्ट आप किसी भी सिटी में जाएंगे वहां पे सिमिलर सिचुएशन है। रीजन क्या है कि हम लोग ना गलत अप्रोच से वेस्ट मैनेजमेंट को हैंडल कर रहे हैं। तो मैं आपको ना एक टिपिकल तरीका बताता हूँ कि कैसे वेस्ट मैनेजमेंट हैंडल हो रहा है। तो कोई भी सिटी है वहां पर क्या है कि एक रिसर्च करके म्युनिसिपल बॉडीज एक टेंडर लाइव करते हैं, ओपन टेंडर करते हैं, जिसमें एनीवन हु इज हैज सम कैपेबिलिटी कैन बिड इट, और मिनिमम जो ऑफर कर रहा होगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कि हम इतने कम अमाउंट में ये पूरा वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, उनको ये काम अवार्ड हो जाता है ना। दैट इज टिपिकल इंडियन टेंडरिंग सिस्टम। किसी भी गवर्नमेंट का काम कर रहा होता है, आपको सेम ही सिस्टम को फॉलो करना होता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है, जैसे ही वो L1 हो जाते हैं, वो एक लोकल वो वहां पर एक मैनेजर और एक टीम हायर करते हैं। वो टीम लेट सपोज 1 लाख घर पर को मुझे सर्विस देनी है वेस्ट कलेक्शन की, वेस्ट मैनेजमेंट की। तो मैंने लेट सपोज 20 से 25 लोगों का स्टाफ हायर किया, एंड मैंने लगभग 200 सैनिटेशन वर्कर्स हायर किए, एंड मैंने व्हीकल्स प्रिक्योर कर लिए, गैराज ले लिया, और मैंने एरिया डिफाइन कर दिया, और मैंने वहां गाड़ियां भेजना स्टार्ट कर दी। दैट्स इट। अब प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है कि हम इस पूरे सिस्टम को ट्रैक ही नहीं कर सकते। मेरे मतलब 100 गाड़ियां फील्ड में हैं, एंड आई हैव नो आइडिया कि वो सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे, एंड दिस इज द रियल सिनेरियो विच आई एम टॉकिंग अबाउट। तो प्रॉब्लम क्या होती है, क्या हो रही है कि Right. 60 to 70% एरिया में ही वेस्ट कलेक्शन हो रहा है, 30 to 35% एरिया है वो अभी भी अनकलेक्टेड रह रहा है। और वी ऑल वांट टू मेक आवर हाउस वेरी क्लीन, तो हम अपना घर तो साफ रखते हैं। तो जितना भी वेस्ट होता है हम लोग क्या करते हैं, या तो कहीं पर रोड साइड में कोने कुचारे में पटक देते हैं, या हम कोई ओपन लैंड जो हमें अपने घर के पास दिखता है वहां पर डंप कर देते हैं, और अगर थोड़ा सा ज्यादा दिखता है किसी को तो हम उसको आग लगा देते हैं, राइट। तो हम लैंड डिग्रेडेशन कर रहे हैं, हम एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, हाँ, correct. एंड जो वेस्ट हम लोग डंप कर रहे हैं, Right. मतलब उसमें वैल्यू है। मतलब जैसे क्या होता है कि हम लोग के पास, हमारे घरों में अभी भी चलता है कि अखबार है या प्लास्टिक बॉटल्स है, कबाड़ी वाला आता है, वो लेके जाता है, तो वो हमें पे करता है, राइट। तो ऑल दो जो वेस्ट हम लोग बाहर फेंकते हैं, उसमें जो कबाड़ी वाला वैल्यू देता है उतना वैल्यू तो नहीं होता, बट उसका 15-20% वैल्यू होता है। तो वैल्यू इज वैल्यू, बट क्योंकि हम उसको मिक्स करके वेस्ट कलेक्शन व्हीकल में डाल देते हैं, या उसको कोने कुचारे में डाल देते हैं, या आग लगा देते हैं, तो अल्टीमेटली वी आर बर्निंग मनी, राइट, विच कैन एक्चुअली कैन Right. कम बैक टू अस। तो टिपिकली क्या हो रहा है Correct. कि जितने भी 4700 म्यूनिसिपैलिटीज है, वहां पे इसी सेटअप में काम हो रहा है कि व्हीकल जा रहे हैं, वो जितना एरिया वो कवर कर सकते हैं वो कवर कर रहे हैं, एंड कोई ट्रैकिंग नहीं है। कोई सिर्फ इकलौता फीडबैक मैकेनिज्म होता है कि मेरे पास गाड़ी नहीं आई, मैं तुरंत आज कॉल करूंगा और मैं बोलूंगा कि भाई मेरे यहाँ गाड़ी नहीं आई है। और Correct. ये सिस्टम ना, मतलब कोई भी सोचेगा ना, उसको लगेगा यार कितना सिंपल ही तो है, मुझे क्या कर रहा है। लेट सपोज मेरे 1 लाख घर है, 100 गाड़ियां हैं, मुझे 1 लाख घरों तक 100 गाड़ियों को भेजना है, मतलब हर एक गाड़ी को 1000 घर पर भेजना है। बट मैं आपको ना एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता हूँ कि क्यों ये बहुत डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स जॉब है। तो लेट सपोज 1 लाख घरों में मुझे अगर वाटर कनेक्शन या फिर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगाना हो, तो इट्स अ वन टाइम जॉब। और लेट सपोज मैं 3 महीने या 6 महीने में एक बार लगाता Right. हूँ, तो मैं दूर दूर के जहां भी एक बार कंप्लेन आई कि भाई मेरे घर नहीं लगाया, और हम लोग कनेक्शन लगा सकते हैं। वेस्ट कलेक्शन एवरीडे जॉब है, तो इट इज 365 टाइम्स डिफिकल्ट प्रॉब्लम देन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। तो पहली चीज ये इसको ही कॉम्प्लेक्स बनाता है। दूसरा, जो 1000 लोकेशन है उसको याद रखना। हम लोग सैनिटेशन वर्कर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 1000 घर तक पहुंचे। सैनिटेशन वर्कर छोड़ो, आप मुझे बोलोगे ना मेरे एरिया नहीं में कर मैं नहीं सकते. पहुंच पाऊंगा विदाउट यूजिंग गूगल मैप। Correct. तो ये जैसी गैप हमें समझ में आया, तो नाउ व्हाट वीवो इज, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ कि हम लोगों ने सबसे पहले ये किया कि पहले एक बैकएंड टीम बनाई जो बेसिकली गाइड करे सैनिटेशन वर्कर्स को। तो हमने एक ओला ओबर टाइप ऐप बनाया, जो 1000 लोकेशन में सैनिटेशन वर्कर्स को जाना है, उनको अब अपने Okay. दिमाग को यूज नहीं करना। उनको सिंपली क्या करना है, डेली उनकी एक डिजिटल आईडी है, वो आते हैं अपनी आईडी एंटर करते हैं, उनको उनका एरिया एलोकेट हो जाता है। वो व्हीकल ऑन करते हैं, वो नेविगेशन फॉलो करते रहते हैं। इट्स लाइक अ गेम, जैसे नीड फॉर स्पीड खेलते हैं,
बस मतलब स्पीड लिमिट 10 की रहती है, वो एक एक घर तक पहुंचते जाते हैं। हर एक एरिया का ना टाइम भी फिक्स है। लेट्स सपोज आपकी गली है तो हमने 5 मिनट फिक्स कर रखा है। कोई गली है जहां पर 5 रेस्टोरेंट 2 होटल है तो वहां पर 20 मिनट लगेंगे, तो वहां 20 मिनट से पहले आप व्हीकल को बाहर नहीं लेके जा सकते। तो हमने इस तरह से पूरा बीट प्लान बनाए हुए होते हैं, और सैनिटेशन वर्कर्स को जस्ट लाइक ओला उबर उसमें आपको फॉलो करना है और वेस्ट को लेते रहना है। और जैसे ही उनका वेस्ट पिकअप होने लगता है, तो लेट्स सपोज आपके घर 5 मिनट बाद गाड़ी आने वाली है, तो हम लोगों ने सिटीजन के लिए भी एक ऐप बना रखा है। तो गाड़ी आने से पहले आपके फोन में एक जिंगल बज जाएगा स्वच्छ भारत ओके। का, तो यू कैन कीप योर वेस्ट आउटसाइड ऑल्सो। तो हमारी टीम आएगी, उसको पिकअप कर लेगी। और ये दोनों एक्टिविटीज मतलब आपके पास व्हीकल कब आया प्लस व्हीकल का मूवमेंट क्या हो रहा है, ये पूरी चीज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हु आर द एक्चुअल ओनर्स ऑफ द सिस्टम वो रियल टाइम में हर एक एक्टिविटी देख सकते हैं। उनके पास हर टाइम पर रिपोर्ट्स रहती हैं, वो कोई भी चेंज करना चाहे वो चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो जाता है, और एक मॉनिटरिंग इस तरह से हो जाती है कि कोई गुंजाइश नहीं रहती गलती की। तो दिस इज आर मॉडल, वी वॉइस मॉडल। वाओ, दैट इज टोटली अमेजिंग। इवन आई विल से कि यार देहरादून में जल्दी लेके आओ, आते टाइम तो कूड़े की गाड़ी पहुंचती ही नहीं है घर तक। डेफिनेटली डेफिनेटली विल ट्राई। इवन हमारे ऑफिस में मुझे जाना पड़ता है लेके कूड़ा पर्सनली घर, कि वहां से दे दूंगा, यहाँ नहीं हुआ तो। एंड दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। नहीं, जो आपने सिस्टम बनाया, इट इज वेरी वेरी, आई थिंक वेरी गुड। अगर फोन पे नोटिफिकेशन जा रहा है तो बंदा भी नहीं बोल सकता कि हाँ मेरे को पता नहीं चला गाड़ी आई नहीं आई। सो ये तो काफी बढ़िया सिस्टम क्रिएट किया हुआ है आपने। इन केस मान लो व्हीकल मिस भी कर गया, या लेट्स सपोज आपके घर कोई प्रोग्राम था और आपका वेस्ट ज्यादा है, तो आप पहले से ही नोटिफाई कर सकते हो कि भाई मेरा वेस्ट ज्यादा है, आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो। द ओनली थिंग इज यू जस्ट हैव टू पे मे बी 50 रुपीज और 100 रुपीज एक्स्ट्रा फॉर द पिकअप, क्योंकि आपका वेस्ट ज्यादा है, व्हीकल आएगा स्पेशली। ओके। बट आप अपने वेस्ट को कलेक्ट करवा सकते हो, या आपका व्हीकल मिस कर गया तो यू कैन लॉग अ कंप्लेन, तो विद इन 24 आवर्स व्हीकल आएगा और आपका वेस्ट कलेक्ट करेगा। वाह, दैट इज अमेजिंग। ये तो ये काफी लोगों के साथ होता है। आपके इवन ऐसे तो कोई घर रेयरली छूटेगा। राइट। काफी आपने सोच के दिमाग लगाया इस चीज पे। नहीं नहीं नहीं, लाइक टू बी वेरी तो ऑनेस्ट, इसमें अभी। इनिशियली तो हम लोगों ने सिर्फ ये किया था कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए बनाया था कि वो ट्रैक करता रहे। फिर हम लोगों ने सिटीजन के लिए ऐप बनाया। फिर हमें हमारे ना सैनिटेशन वर्कर्स मतलब लाइक दे आर द जीनियस गाइस। मतलब उन्होंने इतने सारी चीजें बताई हम लोगों को। मतलब आज लेट्स सपोज जैसे मैंने आपको एक फीचर बताया कि गाड़ी आने से पहले अलार्म मच जाता है, तो अभी ऑलमोस्ट 750 राइट। फीचर्स हमारे पूरे सिस्टम में हैं। और आई एम प्राउड टू से कि 50% से ज्यादा हमारे सैनिटेशन वर्कर्स के सजेशन हैं। जैसे एक सजेशन का ये था कि सर ड्यूटी ऑफ वाह, होते टाइम मुझे मेरी सैलरी दिख जाए ना, दैट इज ग्रेट। तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि आज मैंने 500 रुपए कमाए, आज मैंने 550 करेक्ट। कमाए। या मुझे ये दिख गया सर आज मैंने 95% काम किया, कल मैं सर 100% काम करूंगा। तो ऐसे बहुत सारे सजेशंस जो है हमारे सैनिटेशन वर्कर्स ने दिए, और हम कंटिन्यूसली वर्क किया। तो बेसिकली ये बैकएंड टीम है ना, उसने एसओपीज बनाए। तो हमारे जैसे प्रॉपर एसओपीज है, लाइक सुबह जैसे 6 बजे सारे सैनिटेशन वर्कर्स को आना है, उनका ड्यूटी ऑन होना चाहिए, उनकी डिजिटल आईडी होनी चाहिए, वो यूनिफॉर्म में होने चाहिए, उनकी गाड़ी साफ होनी चाहिए, वो अपने गाड़ी में डीजल का लेवल चेक करके निकले, उनको अपने वार्ड में 6:30 पर पहुंचना है, उनको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, उनको सिटीजन से कैसे बात करनी है। और हम लोग टाइम टू टाइम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी रखते हैं ताकि हमारे सैनिटेशन वर्कर्स को हमेशा याद रहे कि हमें किस तरह से बिहेव करना है, हम कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं। और उनको याद दिलाते रहते हैं कि हम स्वच्छता हीरोज हैं, तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, हम सफाई वाले हैं। करेक्ट। नहीं, काफी बढ़िया तरीके से आपने सिस्टम को बिल्ड किया हुआ है। इवन मैं तो कहूंगा कि आप इस चीज के ऊपर एक अलग से सेशन दे सकते हैं कि एसओपीज और सिस्टम कैसे बिल्ड किया जाए, बिकॉज मेनी पीपल आर नॉट एबल टू बिल्ड इट। आई हैव बीन इवन, मैंने ही काफी स्ट्रगल किया, 4 साल लग गए मुझे, अभी तक मेरे सिस्टम में मुझे काफी फ्लॉज दिखते हैं। सो आई एम ऑल्सो कंटिन्यूसली वर्किंग। बट मेरे पास मैक्सिमम जो हमारे पॉडकास्ट पे इंक्वायरीज आती हैं वो इसी चीज की आती हैं कि कुछ सिस्टम बनाने पे बात करो, एसओपीज पे बात करो, कैसे मैं स्केल करूं, मेरी टीम ये कर रही है, मेरे को नहीं समझ आ रहा है, रोज टीम से मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, पूरा टाइम मेरे पास आती रहती है, तो कैसे इसको ऑटोमेट करूँ। सो दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम दैट एवरी एंटरप्रेन्योर फेस। तो आपने उसको काफी अच्छे से
वो किया है, लाइक कैप्चर ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम दी सैनिटेशन वर्कर्स। अब कंसिडरिंग मैं बात करूँ, सो वी ऑल नो कि बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड होता है सैनिटेशन वर्कर्स के साथ काम करना। तो आपने उस चीज को अगर ऑर्गेनाइज कर दिया, सो दैट इज अ बिग कुडोस टू यू, क्योंकि वेरी दिस कॉन्फिडेंट इज जब आप समथिंग। हमारी टीम से मिलेंगे, हमारे सैनिटेशन वर्कर्स से मिलेंगे, यू विल फील कि थोड़े से स्ट्रक्चर्ड है। दे आर नॉट लाइक वो बॉटम ऑफ द पिरामिड पर जो अनऑर्गेनाइज वर्कफोर्स है, वो वैसी नहीं है। दे आर समथिंग डिफरेंट। दे नो हाउ टू ऑपरेट व्हाट्सएप। दे नो कि मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, मैं कैसे बैलेंस चेक करूँ। तो मतलब आई एम वेरी प्राउड कि हमारे सैनिटेशन वर्कर्स जो है वो थोड़ा सा एडवांस है। नहीं, आपने काफी अच्छा किया भाई। तब जब सब बढ़ेंगे तभी तो बढ़ेगा इंडिया। वही बात हो गई ना। राइट। अगर सारी नीचे से ही ट्रेनिंग होती जाएगी तो सब ऑटोमेटिकली अपने आप ट्रेन होते जाएंगे। सो मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अब जो आपने इस चीज पे की, इसमें पब्लिक का क्या परसेप्शन रहा है, और कभी कुछ क्राइसिस का, जो ये क्राइसिस चल रहा है वेस्ट मैनेजमेंट का, इसमें क्या आप इनिशिएटिव्स ले रहे हैं टू टेल पब्लिक की बेटर प्रैक्टिसेस फॉलो करो, आप ऐसा करो, लाइक लाइक इधर इज इट जस्ट विद जो आप नगर निगम वगैरह के साथ काम कर रहे हो विद द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, और लाइक आप पब्लिक को भी कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स दे रहे हो और उनसे परसेप्शन ले रहे हो? So how it works on that note? राइट। सो वी हैव अ सेपरेट टीम जिसको हम लोग इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन टीम बोलते हैं, शॉर्ट में आईसी टीम बोलते हैं। एंड हम ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज करते रहते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने क्या किया कि Okay. टायर वेस्ट से चेयर्स बनाए। तो मतलब वेस्ट से वैल्यू कैसे जनरेट की जा सकती है, या कहीं पर लोग बार बार कचरा करते थे तो उसको क्लीन करके वहां पर पेंट करके बोला कि यहाँ पर मतलब आप कचरा ना करें करके। एंड वी हैव सीन रिजल्ट्स, मतलब लोग बहुत अच्छे से इन सब चीजों को समझ रहे थे, इन सब चीजों को सपोर्ट भी कर रहे थे। और हम लोग कुछ ना डेमोज करते हैं सिटीजन के सामने। बेसिकली 2 डब्बे लेके उनके वेस्ट बिन से निकाल के कि कौन सा गीला है कौन सा सूखा है उनको दिखाना वहीं पर। और बहुत सारे लोगों ने फिर नेक्स्ट डे सेग्रीगेशन करना स्टार्ट किया। बट द प्रॉब्लम इज कि Okay. क्वांटम इज वेरी बिग, मतलब पॉपुलेशन बहुत बड़ा है अपना, और हम लोग लिमिटेड तरीके से ही इसको कर सकते हैं। इट्स अ कॉस्टली अफेयर, लाइक मतलब Right. कि मतलब हर एक इंसान को हर एक घर तक पहुंचाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो दिस समथिंग जिसपे वी आर वर्किंग कि कैसे हम ना मास कम्युनिकेशन कर सकें। क्योंकि ऑल्दो गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, वो भी बहुत, मतलब आप देखना स्वच्छ भारत मिशन में ऑलमोस्ट जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी क्रिकेटर्स हैं, उन लोगों ने वीडियोस बनाए हैं, उन लोगों ने इसके ऊपर बात करी है। प्रॉब्लम है कि वो ना यहाँ तक नहीं पहुंच रही है वो चीज, वो ना थोड़ा सा Correct. दूर ही निकल जा रही है। तो दिस समथिंग वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि कैसे ना हम लोग थोड़ा फास्ट पेनिट्रेट कर पाए, और जितना फास्ट। और यही वो एक लिंक, मिसिंग लिंक में बता रहा हूँ कि जो हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट में प्रोग्रेस कर रहे हैं ना, वो ऐसी लीनियर चल रही है। शायद ये ऐसा होने के लिए ना ये एक मिसिंग लिंक है कि हम लोग मतलब सिटीजन का पार्टिसिपेशन बढ़ा दें सेग्रीगेशन में। आई टेल यू कि हम लोग एटलीस्ट टैक्स पेयर का जो बहुत सारा पैसा वेस्ट मैनेजमेंट में लग रहा है, वो लेट्स सपोज 100 रुपया अगर हम लोग का वेस्ट मैनेजमेंट में लग रहा है टैक्स पेयर का, तो वो 50 to 40 रुपीज तक कम हो सकता है अगर हम लोग अवेयर हो जाए। तो Okay. ये अगेन एक दिस समथिंग वेयर वी आर आल्सो कंटिन्यूसली ये वर्किंग तो बट। काफी बड़ी इंसाइट है, वी विल हाईलाइट दिस इन द पॉडकास्ट। Right. And on the contrary, the way we are managing our waste, if we continue to do so, तो ये अभी अगर हम लोगों का लेट्स सपोज X% ऑफ टैक्स पेयर्स मनी इज गोइंग इनटू वेस्ट मैनेजमेंट, वो 10x हो जाएगा अगर द वे वी आर मैनेजिंग आवर वेस्ट अगर वो ऐसे ही चलता रहा। तो जो जो 9x पैसा जो बढ़ा है वो हमारे ना इंफ्रा पे लगता, वो इंफ्रा पे ना लगते हुए वो वेस्ट मैनेजमेंट में लग रहा है। जस्ट आउट ऑफ आर कन्वीनियंस हम घर को साफ रख Okay. रहे हैं पर सेग्रीगेशन नहीं कर रहे हैं। हम थोड़ा सा अगर अवेयर हो जाए, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो जाए, तो वी कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी एंड विच कैन बी यूटिलाइज फॉर आर इंफ्रास। तो ये भी आई रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स कि आप अपने माध्यम के थ्रू भी नहीं, ये शेयर। तो काफी, we will highlight this again in our episode because this is something very important.
जो आपने बात बोली, क्योंकि एट द एंड टैक्स हम भरते हैं, पैसा वही जाता है गवर्नमेंट के पास। अगर वो इन चीजों पे लग रहा है, दैट मीन्स इट हैड टू स्टार्ट विद एवरी सिटीजन। हम बदलेंगे तो देश बदलेगा। करेक्ट। आई थिंक अगर गवर्नमेंट भी अगर कुछ इस तरह का एक डैशबोर्ड देना कि आपके टैक्स पेयर का कितना पैसा वेस्ट मैनेजमेंट लगा है, अगर ये चीज एक डेटा भी विजिबल हो जाए तो वो भी शायद हम लोग के लिए अच्छा है ओपनर होगा। काफी लोग तो खुद ही सुधर जाएंगे, बोलेंगे यार ये यहाँ क्यों जा रहा है। यार, राइट राइट। नहीं, काफी सही चीज है। तो आपका आपके में, सो सिंस वी हैव बीन स्टार्टेड टॉकिंग ऑन दिस पॉडकास्ट, एक चीज बड़ी कंटिन्यूस रही है, योर सिस्टम्स, एंड इट इज ऑल टेक बेस्ड। दैट इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। सो थोड़ा सा इसके बारे में बताओ कि क्योंकि लाइक एवरी एंटरप्रेन्योर, एवरी बिजनेसमैन, दे आर नाउ थिंकिंग कि मैं अपने बिजनेस को टेक पे कैसे लेके जाऊं, और अगर टेक पे ले आते हैं तो उसको इम्प्रोवाइज कैसे करूं। एंड आई थिंक यू हैव वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स who I know who can talk about building applications जो आपके कस्टमर को, आपके स्टाफ को बोथ एंड्स पे हेल्प कर रही है। सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो थोड़ा सा यू टेल अबाउट दिस सिस्टम एंड हाउ यू डिजाइंड इट। ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव योर ओन शेयर ऑफ सक्सेसेस एंड फेलियर्स। सो थोड़ा सा इसके बारे में लेट अस डिस्कस। राइट। तो सबसे पहले तो आपको ना ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि डू योर सिस्टम रियली नीड टेक। तो इन आर केस सीन क्या था कि अगर मुझे लिमिटेड एरिया में वेस्ट मैनेजमेंट करना है तो हम लोग को टेक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। फॉर एग्जांपल अगर मुझे सिर्फ 5,000 घरों को या 4,000 घरों को वेस्ट कलेक्शन भेजना है तो वो मैं मैनुअली कर सकता था। बट अगर मुझे इसे स्केल करना है तो मुझे टेक की जरूरत पड़ रही थी। तो पहली चीज तो क्या है कि आप कभी भी ना पहले टेक मत बनाओ। अगर आप आपका टेक प्रोडक्ट नहीं है, मतलब बेसिकली जो हमारी सर्विस है वो मेजरली वेस्ट कलेक्शन सर्विस है, वो कोई टेक सर्विस नहीं है। तो अगर आपका सर्विस या प्रोडक्ट टेक नहीं है तो आप पहले से टेक बिल्कुल मत बनाओ। दैट इज नंबर वन। लेकिन अगर आपका टेक प्रोडक्ट या सर्विस है देन डेफिनेटली आपका एक प्रॉपर वायर फ्रेम होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा बेटर गाइड नॉन टेक सर्विसेज प्रोडक्ट के बारे में कर पाऊंगा कि क्यों टेक इंपॉर्टेंट है, तो मैं थोड़ा उस पर बात करता हूँ। तो सबसे पहले आप टेक बिल्कुल। ना बनाएं, स्टेप वन। स्टेप टू, आप पहले ना छोटे स्केल पर उसको मैनुअली करें, पेन पेपर पर करें। स्टेप टू, उसको एक्सेल शीट्स में कन्वर्ट करें। थर्ड, फिर उसके लिए ना आप छोटे छोटे टेक मॉड्यूल्स बनाना चालू करें और उन एक्सेल शीट्स को रिप्लेस करना स्टार्ट करें। अगर आप इस तरह से करेंगे तो दो चीजें होंगी। एक तो आपका टेक का कॉस्ट बहुत कम लगेगा, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग बना 10 चीज देते हैं लेकिन यूज में 1 या 2 ही आती है। तो वो जो 8 चीज पर हमारा टेक का पैसा, और टेक आज के टाइम में डेवलप करना इज अ कॉस्टली अफेयर, तो आप बहुत सारा पैसा ऐसे बचा करेक्ट। सकते हैं। दूसरा, आपको ना बहुत, जब आप पेन पेपर पे करके एक्सेल पे करते हुए टेक की तरफ जाते हैं ना, तो आपके फेलियर चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मतलब एक चीज हो गया, मैंने 10 चीज बना दी, काम की 2 है। दूसरा हो गया, मेरे काम की 10 चीज है लेकिन वो एफिशिएंटली वर्क सिर्फ 2 या 3 कर रही है। रीजन बीइंग क्योंकि मैंने पहले बना दी थी, है ना, बार बार चेंजेस आ रहे हैं। करेक्ट। तो मतलब स्केल करने के लिए टेक तो डेफिनेटली रिक्वायर्ड है, बट माय सजेशन इज कि पहले नहीं बनाओ, पहले पेन पेपर पर करो, फिर एक्सेल पर करो, एंड देन धीरे 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 आप टेक से उसको रिप्लेस करना स्टार्ट कर दो, एंड यू विल स्टार्ट सीइंग द डिफरेंस। मतलब आपकी मैन पावर 1 घंटे में जो एक्स काम करती थी वो ऑटोमेटिकली टेक की हेल्प से 100x काम करने लग जाएगी। तो दिस इज हाउ वी डेवलप्ड आवर टेक। और इवन टुडे हम लोग सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। कुछ भी नई चीज बनानी होती है तो पहले हम लोग लिमिटेड सेट पर वर्क करते हैं, फिर उसको पेन पेपर से एक्सेल पर लेके जाते हैं, देन हम उसके लिए टेक बिल्ड करते हैं। या दैट इज अ वेरी गुड सिस्टम आई थिंक। पहले पेन पेपर पे अच्छे से हो जाए, फिर एक्सेल पे अच्छे से हो जाए, एक्सेल से होने के बाद यू कैन टेक इट टू टेक। मेक सेंस, ये काफी हेल्पफुल है। तो इसमें अभी आपने एक चीज बात की कि स्केल करने के लिए तो टेक चाहिए चाहिए। तो जो आपका बिजनेस मॉडल है, इसको कैसे आप स्केल कर रहे हो, लाइक हाउ यू आर स्केलिंग दिस। हम लोग तो बहुत एक सिंपल स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं। हम लोग क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या अपने आप में एक छोटा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बॉडी है। तो एंड जो ऑपरेशनल मेथड है वो सिंपल नहीं है कि जस्ट लाइक कि मे बी एक पॉडकास्ट देखा एंड वी लाइक द कंपनी, हमने इनवाइट किया और उनको काम दे दिया। देयर शुड बी अ प्रॉपर चैनल बिकॉज ये टैक्स पेयर्स मनी है, तो दे आर आंसरेबल, द सिस्टम हैज टू बी ट्रांसपेरेंट। तो इंस्टेड दे रीच आउट टू अस, वी रीच आउट टू देम, एंड वी सी कि जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंटरेस्टेड होती है तो हम लोग उनसे उनको एक प्रपोजल देते हैं, सिस्टम देते हैं
बेस्ड ऑन दैट फिर वो अपने यूज केस के हिसाब से एक ओपन टेंडर ड्राफ्ट करते हैं, एंड देन उसमें हम लोग बिडिंग करते हैं, एंड जिन बिड में हम लोग L1 हो जाते हैं वहां पर हम उन सिटीज में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये तो एक सिंपल तरीका हो गया काम लेने का, बट टेक कैसे हमें हेल्प कर रही है? तो बेसिकली हम लोगों ने जो मैंने आपको एसओपीज बताए थे 30 एसओपीज बना रखे हैं। तो करेक्ट। टेक हमें हेल्प करती है कि उन, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम 15 सिटीज में काम कर रहे हैं, तो 15 सिटीज में वो सारे 30 एसओपीज का जो सर्विस लेवल है वो 90% है। तो ये सारा क्योंकि बहुत ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा आता है, मतलब हर व्हीकल हर सेकंड अपना पोजीशन का डेटा दे रहा है, हर कलेक्शन का डेटा हमारे पास आ रहा है। अभी 600 गाड़ियां चल रही हैं तो 600 गाड़ियों का हर सेकंड डेटा आता है। ये तो मैं सिर्फ एक मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ, तो यू कैन अज्यूम कि कितना बड़े क्वांटम में हम लोग के पास डेटा आ रहा है। तो टेक के हेल्प से हम लोग उसको स्ट्रीमलाइन करते हैं कि एसओपी के साथ लिंक करते हैं कि एसओपी को कितना परसेंट फॉलोअप कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सिंपल सा केस लेता हूँ कि कितने लोग हमारे लेट्स सपोज 600 गाड़ियों ने 1800 ट्रिप्स करी, तो 1800 ट्रिप्स क्या प्रॉपरली कवर्ड थे ताकि वेस्ट लीक आउट ना हो? तो उसका हमारा जो टैग है वो सिस्टम मतलब हमारे ड्राइवर हेल्पर्स को फोटोग्राफ लेने होते हैं, सिस्टम ऑटोमेटिकली थ्रू इमेज प्रोसेसिंग बता देता है कि आउट ऑफ 1800 1600 आर कवर्ड प्रॉपरली, 200 प्रॉपरली कवर्ड नहीं है। तो ऐसे 30 एसओपीज ट्रैक हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सिस्टम। और हम लोगों ने एक जो सर्विस लेवल डाला हुआ है, तो फॉर एग्जाम्पल एवरेज 90% है 15 सिटीज का, लेकिन सिटी 1 में 70 था, तो हमारी टीम 70 वाले पे वर्क करती है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन है, और उसको सॉल्व करने का कोशिश करती है। तो टेक इस पूरे सिस्टम को एफिशिएंटली वर्क होने में, सेम एफिशिएंसी से वर्क होने में हेल्प करती है, और ये विदाउट टेक पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग सेम लेवल ऑफ ऑपरेशन पूरे 15 राइट सिटी रखें। एंड दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, लाइक राइट 30 राइट। एसओपीज नहीं, जो मैं ऑपरेट। समझ गया अब। इट गिव्स एन इंसाइट। करेक्ट। ऑपरेशंस अलग है, कस्टमर के साथ अलग है, सो इट ऑल मेक सेंस। तो अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी आपने और मैंने, जहाँ पे मेनी ऑफ दी स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स वर्क वांट्स टू वर्क विद गवर्नमेंट। सो आपने मेरे को एक टर्म बताया था, आई थिंक इट वाज, आई हैव रिटन इट डाउन। हाँ, कि आप अपने आप को मार्केट कैसे करते हो B2B में और B2G में। तो ये बोथ चीजों के बारे में आप थोड़ा सा इंसाइट दो ऑडियंस को, बिकॉज B2G के बारे में आज तक हमने कभी बात नहीं की। राइट। तो B2G के लिए ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब जैसा मैंने आपको भी बताया कि गवर्नमेंट, कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी आपको कितना ही पसंद करता हो, दे कैन नॉट ब्रिंग यू डायरेक्टली, राइट? यू हैव टू फॉलो सर्टेन प्रोटोकॉल, लाइक देयर शुड बी ओपन टेंडर, you should be competent enough, you should have put the minimum value for the same work. तो the only way is कि आप somehow like गवर्नमेंट बॉडी से कनेक्टेड रहें। तो जितने भी कॉन्फ्रेंसेज होते हैं जिसमें गवर्नमेंट एक्टिव पार्टिसिपेंट होती है, आप उन कॉन्फ्रेंसेज का पार्ट रहें। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिटी 2.0 कॉन्फ्रेंसेज होती हैं जो म्युनिसिपल बॉडी से रिलेटेड है, तो ऐसे ही अलग अलग म्युनिसिपल बॉडीज के अलग अलग कॉन्फ्रेंसेज होते हैं उनके खुद के। जैसे राजस्थान में डायरेक्टरेट ऑफ लोअर बॉडी, जितने भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उनका हेड है, सिमिलरली हर स्टेट के ऐसे हेड्स होते हैं। अभी राइजिंग राजस्थान चल रहा है राजस्थान में, तो वहां पर भी सारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज एक साथ आते हैं। तो हम लोगों को बस पता नहीं होता, बस सारे प्रोग्राम चल रहे होते हैं जहाँ गवर्नमेंट बॉडीज रहती हैं। और जब आप अपने आइडियाज वहां पर बताओगे, शेयर करोगे, यू विल बी सरप्राइज टू सी दे आर दे वांट टू लिसन, दे वांट सॉल्यूशंस। द ओनली थिंग इज कि देयर इज अ गैप कि उन तक पहुंच नहीं पा रहे होते हैं हम लोग, है ना? तो द मोमेंट ये जब गैप फिल हो जाएगा, आपके पास अगर सोल्यूशन है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या किसी भी गवर्नमेंट बॉडी पीएसयू को का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता होगा, द ओनली थिंग इज दैट गैप कि आपका और उनका मिलना। अगर आप उन्हें मिलोगे, आप उन्हें सोल्यूशन बताओगे, तो डेफिनेटली वो आपको काम देने का ट्राई करेंगे। तो माय एडवाइस इज कि आप अपने टारगेट ऑडियंस को रीच आउट करने का कोशिश करें थ्रू मल्टीपल थिंग्स, लाइक कॉन्फ्रेंसेज हो गए, उनको पॉसिबल हो तो 1-to-1 मिले जो आपके टारगेट हो, उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको मिल जाए तो उनको न्यूज लेटर्स शेयर करें, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, अपने डेवलपमेंट के बारे में बताएं, अपने अपडेट्स दें। तो डेफिनेटली वो आपसे और जानना चाहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली दे ऑल्सो वांट टू डू गुड वर्क। हर कोई अप्रिसिएशन चाहता है। तो दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच। बट जो B2C वाला कॉन्सेप्ट है वो नहीं चलेगा। लाइक
कोई एडवर्टीजमेंट आप करा दो उससे काम नहीं चलेगा, कोई आपका पीआर न्यूज आ रहा है उससे काम नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें वर्कआउट नहीं कर पाएंगे इन केस ऑफ गवर्नमेंट। आपके फोन में कोई मैसेज आ गया, मतलब व्हाट्सएप मार्केटिंग या इस टाइप की मार्केटिंग, वोट नहीं चलेगा। इंस्टाग्राम पे ऐड आ गया, वो सब चीजें वर्कआउट नहीं करेंगी। एंड व्हाट अबाउट B2B? B2B वाले केस में तो आप को सिंपल क्या है कि दो दो चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। एक जो सेम गवर्नमेंट के साथ है, सेम B2B के भी लाइक हर मंथ मैं तो देख रहा हूँ एटलीस्ट 2 से 3 कॉन्फ्रेंसेज होते हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में। तो आप उनको अटेंड करें, मीट पीपल एंड सेंड देम ईमेल्स। दैट इज द बेस्ट वे, सेंडिंग द अपडेट्स, ईमेल्स, डेफिनेटली यू गॉट इन रिवर्ट। मतलब we have found this कि they respond either they want to do it or they don't want to do it, but you get in response। तो आप ईमेल के थ्रू, अगेन न्यूज़लेटर्स, अपडेट्स, कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू, समिट्स के थ्रू आप उनसे मिले, रीच आउट करें, डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। बट हाँ, हमारी एक्सपेक्टेशन ये नहीं होनी चाहिए कि हम लोग 10 लोगों से मिल रहे हैं तो 10 से रिवर्ट आएगा। हम 100 से मिल रहे हैं तो 10 से रिवर्ट डेफिनेटली आएगा। करेक्ट। या मैं भी वही बोलने वाला था कि जनरल रेट जो रिप्लाई का होता है वो 10% ही रहता है। ये नहीं कि 100 अभिषेक है सेट तो अब मुझे भी 100 में से 100 का रिप्लाई आना चाहिए। बट गुड पार्ट अबाउट इज द लॉयल्टी पार्ट, दैट इज फिनोमिनल। मतलब आपने अगर करेक्ट 100 में से 2 या 3 लोगों को कन्वर्ट किया और आपका क्वालिटी ऑफ सर्विस या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, देन नो वे दे आर प्लानिंग टू रिप्लेस यू अनटिल कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस से कोई दूसरा 10x बेटर सर्विस प्रोवाइड ना कर रहा हो। करेक्ट। या दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। सो अभी हमने ये बात की मार्केटिंग की, सो आप इसमें अभी फ्यूचर कैसे देखते हैं? समथिंग दैट वी एंटरप्रेन्योर्स कीप ऑन टॉकिंग अबाउट कि यार अब आगे ये करना है, अब आगे ये करना है। सो हाउ डू यू सी योर बिजनेस, फ्यूचर का क्या है अभी, और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा उससे? बिकॉज यू एंड आई वर टॉकिंग अबाउट लाइक देयर हाउ ब्यूटीफुल द सिटी ऑफ देहरादून इज, एंड यू ऑल्सो हैव पर्सनली विजिटेड मसूरी। So वहाँ पे but waste management is still something that needs to be done, and you and I were discussing about one of the concept. I don't remember what exactly you said, police something related. So पहले तो आप उसके बारे में बताओ और फिर उसके बाद हमें बताओ कि आगे इसका क्या है और प्लान आपका है और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा इससे। तो तो दो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं बट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइक वेस्ट पुलिस जो अपन स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे, यस तो आई थिंक कि अभी एक अच्छी चीज जो हो रही है वो ये है कि वीडियो एनालिटिक्स में काफी काम हो रहा है। एंड मतलब काफी जल्दी ऐसा होने वाला है कि एटलीस्ट इन सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, मतलब यू विल फाइंड कि हर जगह कैमरेज इंस्टॉल्ड होंगे। मतलब काफी इंपॉर्टेंट एरियाज में होते हैं बट पूरा ही सिटी थ्रू सीसीटीवी कैमरेज कवर होने वाला है। तो थ्रू वीडियो एनालिटिक्स हम लोग, अगेन टेक इज द सोल्यूशन। थ्रू वीडियो एनालिटिक्स वी कैन आइडेंटिफाई पीपल, है ना, वी हैव ऑल द डेटा। तो हम लोग एटलीस्ट सम वार्निंग इश्यूज करना स्टार्ट कर देंगे, सम पेनल्टीज लगाना स्टार्ट कर देंगे, तो डेफिनेटली एक्टिविटीज गेट स्टॉप। स्पेशली पब्लिक में कचरा फेंकना तो बिल्कुल ही रुक जाएगा। तो एक मोबाइल पुलिस होना, सॉरी वेस्ट पुलिस होना इज, आई थिंक, इज द नीड ऑफ द आवर। So we have some ideas, waiting for the right time, working for the right time. We'll definitely pitch in for that. और सेकेंडली एक जो आपने बात किया कि और क्या कर सकते हैं या क्या होने वाला है या क्या फ्यूचर आपको दिखता है, तो एज आई सेड वेस्ट हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल। तो इस पोटेंशियल से वी कैन कन्वर्ट इट इनटू सम काइंड ऑफ एनर्जी। तो फॉर एग्जांपल हम लोग वेट वेस्ट से हम लोग 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोगों का अगर एक 50 टन्स का वेट वेस्ट हम लोगों का डेली कलेक्ट हो रहा है, तो मैं चलो थोड़ा ऐसे टर्म से बात करता हूँ, थोड़ा सा आपने समझ में आए। तो अगर हम लोगों का 1 लाख घर है, तो 1 लाख घर में एक घर लगभग लगभग 2 kg वेस्ट जनरेट करता है। तो लगभग लगभग इसका मतलब क्या है कि 200 टन वेस्ट जनरेट होगा। अगर 200 टन वेस्ट जनरेट हो रहा है तो लगभग लगभग हम लोग मान लेते हैं कि 100 टन उसमें वेट वेस्ट है, जो किचन वेस्ट होता है हमारा। अगर उस करेक्ट 100 टन वेस्ट के लिए मैं एक बायो सीएनजी प्लांट अगर सेटअप करूं, तो मुझे क्या क्या मिलेगा मैं वो बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले मुझे 5 टन ऑफ सीएनजी गैस मिल जाएगा। 5 टन ऑफ ओके सीएनजी गैस को हम लोग अगेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज कर सकते हैं।
हम लोग इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। एंड ये जो गैस है, अगर हम लोग बायो सीएनजी प्लांट सेटअप नहीं करते तो एनीवेज इट विल गो टू एटमॉस्फेयर और इन्वायरमेंट में ये फैल रहा होता। अगर हम लोग बायो सीएनजी गैस में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम लोग बहुत सारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होने से बचा सकते हैं। तो पहली चीज तो हम लोग गैस कर लेंगे, गैस बचा लेंगे, क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो अगेन एक टाइम बाद खत्म ही होंगे और ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ हाँ, एनर्जी हो जाएगा। तो हमारे करेक्ट। कहीं ना कहीं जो गैसेस के प्राइसेस हैं वो थोड़े से डाउन जाएंगे अगर हम लोग पूरे इंडिया के वेट वेस्ट से गैस बनाना स्टार्ट कर देंगे। दैट इज वन। नंबर टू, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं अपने क्रॉप्स में, है ना, विच इज अगेन हार्मफुल। तो एक बहुत हम लोग आजकल सुन करेक्ट। रहे हैं ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए करेक्ट। इवन इसी सम पीपल हैव स्टार्टेड टू डू फार्मिंग एट देयर होम्स, गार्डन में ही फार्म बना के छोटा छोटा सा कर रहे हैं। राइट राइट। तो अभी इंस्टेड ऑफ यूजिंग यूरिया और केमिकल्स, हम लोग अगर इसी वेस्ट से जो गैस निकल गया तो दो फॉर्म और निकलते हैं, दैट इज कंपोस्ट और सम लिक्विड। तो कंपोस्ट अगर हम लोग अपने फार्म में यूज करेंगे तो दैट इज 100% ऑर्गेनिक एंड नेचुरल, और उससे काफी हेल्दी जो हम लोगों के अभी जो ग्रेन्स वगैरह है वो काफी, जो क्रॉप है वो काफी हेल्दी होगी। मतलब इट इट विल बी कोई भी हमारे केमिकल्स नहीं होंगे, तो अगेन एक हेल्दी खाना हम लोग को मिलेगा उससे। एंड थर्ड इज कि केमिकल जो उससे निकलेंगे तो पेस्टिसाइड्स यूज करने के बजाय वी कैन यूज दैट केमिकल सो दैट इंसेक्ट्स और पेस्टिसाइड्स उससे दूर रहे। तो जो वेट वेस्ट हम लोग जनरेट कर रहे हैं उससे हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ गैसियस एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, उससे हम लोग कंपोस्ट जनरेट कर सकते हैं, उससे हम लोग नेचुरल केमिकल्स यूज कर सकते हैं जो कि हमारे क्रॉप्स में पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स नहीं लगने देगा, और हम लोग हेल्दी खाना खा सकते हैं। तो इतने सारे फायदे हैं। तो अब मैं वापस से आऊंगा कि बहुत अगर हम फायदे। सेग्रीगेट करेंगे तभी हम लोग उस वेट वेस्ट से हम लोग गैस निकाल पाएंगे, कंपोस्ट निकाल पाएंगे और हेल्दी रह पाएंगे। तो सोचो, एक तरफ गादी का करेक्ट। पहाड़ और हर शहर में वो गादी जैसे पहाड़ है, उसके जगह हमारे क्रॉप्स निकल रहे हैं और उन क्रॉप्स वो बहुत हेल्दी है। मतलब हम लोग बहुत करेक्ट। सारे जो हमें आजकल कैंसर वगैरह हो रहे हैं ड्यू टू बैड फूड, वो रेट कम हो जाएगा। मतलब मल्टीफोल्ड फायदे हैं। तो एंड दैट इज इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। मैं भी पहले सोचता था कि गवर्नमेंट क्यों इनिशिएटिव ले रही है, वेस्ट क्यों अलग सेग्रीगेट हो रहा है, बट नाउ आई नो द एग्जैक्ट साइंस बिहाइंड इट कि क्यों है उसका पर्पस और कितना इम्पोर्टेंट है। लाइक राइट नाउ अब मेरा काफी दिमाग खुल गया इस बारे में, इस टॉपिक के बारे में कि ये इतना इम्पोर्टेंट है। एंड आई राइट हैव सीन मोस्ट पीपल स्टिल दे वो जाके जो गाड़ी आएगी उससे झगड़ा करेंगे, नहीं मैं एक ही उसमें दूंगा, बट आई थिंक दिस नीड्स टू चेंज। इट ऑल स्टार्ट्स विद दिस मैसेजिंग व्हाट वी आर डूइंग हियर। राइट। सो आई जस्ट टॉक्ड अबाउट वन पार्ट। अदर पार्ट इज जो हमारा ड्राई वेस्ट है। तो ड्राई वेस्ट में भी मोस्ट ऑफ द जो चीजें हैं वो रिसाइकिल हो सकती हैं। प्लास्टिक रिसाइकिल हो सकता है, हम लोगों का पेपर रिसाइकिल हो सकता है, और जो रिसाइकिल नहीं हो सकता तो एनीवेज अभी हम लोग इंडिया में कोल को बर्न कर रहे हैं, तो वी कैन यूज दैट वेस्ट रिमेनिंग। मतलब 50 to 60% जो ड्राई वेस्ट है वो तो आपका रिसाइकिल हो जाएगा, जो रिमेनिंग 30-40% है उससे भी हम लोग एक ऑल्टरनेटिव कोल का बना सकते हैं जिसको हम लोग आरडीएफ बोलते हैं। और वो हमारे जितने भी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर हाई फर्नेसेस होते हैं, जैसे स्टील इंडस्ट्री हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, जहां बर्निंग हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, वहां पर वो एज अ फ्यूल भी काम आ सकता है। तो अगेन जो कोयला है, कोयले के अपने अलग इश्यूज हैं, तो वो ना होते हुए हम लोग आरडीएफ को यूज कर सकते हैं। तो अगेन ये इकोनॉमी में बहुत हेल्प करेगा। अभी हम लोग कितना सारा कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं, तो राइट। मल्टीपल एडवांटेज है। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं पता है, इस वैल्यू को तो जीरो के बजाय हम लोग नेगेटिव कर दे रहे हैं। मतलब हम लोग कचरे का ढेर लगा दे रहे हैं, एंड देन अगेन वी आर स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू क्लीन इट। करेक्ट। हाँ, वो तो आई आई टोटली एग्री कि वी आर नॉट डूइंग इनफ कि हम उस चीज पे वो कर सके। अगर वो स्टार्टिंग से ही एक प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाए तो आगे तो फ्यूचर लुक्स ब्राइट। कोयला भी हो जाएगा, अच्छी खाद भी मिल जाएगी, खाना भी अच्छा मिल जाएगा। जो हमारा पैसा इसमें काफी जा रहा है टैक्स के पर्सपेक्टिव से, उसके बाद जो गवर्नमेंट भी उसमें कम स्पेंड करेगी, बट
Of course, उसके लिए तो I think you guys are working on it. But yes, जो Right. आपने इसमें insights दिए, I think it makes a lot of sense and it is inspirational for many of our entrepreneurs and for us कि किस तरीके से किसी भी इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हो. जो आपका जिस तरीके का बिजनेस है, इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ इनोवेशन, हाउ आई सी इट, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट इज नॉट समथिंग जो किसी ने इस तरीके से मेरे ख्याल से सोचा होगा. ऑफ कोर्स नाउ मेनी कंपनीज वुड बी देयर, आई एम श्योर. जैसे आपने बताया कि मैं टेंडर पोस्ट करता हूँ तो और कंपनीज आती हैं उसमें. बट यस, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. राइट. एक अनमोल में एक चीज और शेयर करना परफेक्ट. चाहूंगा कि यस. व्यूअर्स को ऐसा लगे कि यार कितना सब कुछ ऐसा नेगेटिव से ही क्यों सिनेरियो में शेयर कर रहा हूँ, तो मैं कुछ पॉजिटिव भी शेयर करना चाहूंगा. तो प्लास्टिक यस रिसाइकलिंग प्लीज. में इंडिया इज नंबर 1. तो वी शुड ओके, फील प्राउड अबाउट इट. और व्हाट आई दैट इज वांट ऑसम. कि हम सिर्फ प्लास्टिक रिसाइकलिंग में ग्लोबल लीडर ना बने, हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट में ग्लोबल लीडर बने. दिस इज माय विजन. करेक्ट. एंड आई थिंक इट मेक्स सेंस क्योंकि हमारी पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन. इफ वी डू इट राइट, वी विल बिकम द लीडर्स. देयर इज नो वन हु कैन स्टॉप अस. 100%. मेक सेंस. All right. Perfect, Abhishek. I think we have covered it all. And for our patient, lovely audience who have watched this episode till here, I want you to check out the description. I am putting all the links related to Abhishek. You can reach out to him. You can learn more about his business. He will be there to guide you. He's active on LinkedIn. I even found Abhishek via LinkedIn itself. So you can reach out to Abhishek. And for our audience, if you have any questions, you liked something, you didn't like something, or you have any opinions, please put down in the comment section. We always see you guys keep on liking, you always keep on subscribing, but why not take the next step, segregate our waste, put down some comments, talk about it, and that's how the conversation will roll. Because this episode, we are doing it to tell you about sustainability, to tell you about, because this is the right time. This is Diwali season going on, guys. We all are at home. We are watching this episode. So why not now? You have watched this. You have given your 52 minutes of your life. Why not now put it to work? Why not spread out the word? So Abhishek is doing some good job. Please support him. We will put the Abhishek. You give whatever links you want. We will put them in the description, and we would be happy to give you our audience feedback as well when they hear the podcast, as it will help you as well if there is anything for you. So on that note, our audience, do subscribe, do like, and Abhishek, once again, thank you so much for coming down, shooting this episode in such a hurry. But I think this episode is very sustainable. It is one of the sustainable episodes we have made and one of the most innovative. Perfect. All right, audience, have a good day.